आप लोगों ने किसी ने पढ़ा है इस चैप्टर को? सर पढ़ा है। पढ़ा है, ठीक है। चलिए तो इस चैप्टर में हम जो मोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि पब्लिक हेल्थ अप्रोच एपिडेमियोलॉजी का क्या है, एपिडेमियोलॉजी किसको कहते हैं, की कंसेप्ट, टर्म्स, देयर आर सर्टेन रेट्स व्हिच विल बी लर्न हाउ टू कैलकुलेट, and then approaches and methodology, and then in brief about data sources and study design. Investigation of outbreak जो है वो हमारे किसी दूसरे सेशन का है, तो इसको हम इस सेशन में ओमिट करेंगे। तो इसको ओमिट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी वर्ड जो है वो क्वाइन किस वर्ड से हुआ है? एनी आइडिया? नो सर। Okay, so when we will break epidemiology, so basically there are three words, okay, EP, demos, and logos. So EP is among, demos is people, and logos is a study. So any study which is done among the people is known as epidemiology. If we talk about the history of epidemiology, it can go as back to the days of Adams and Eve, and probably the first epidemiological study can be about the forbidden fruit with which human race started coming on this earth, which can be as back as 3rd century. Now, if you will see the literature, so epidemiology का foundation जो है वो 19th century के आसपास हुआ था, and then there was a classical study which was done into so if you will look into the literature that talks about epidemiological society which was established in London in 1850s, and then they have done investigation on certain infectious disease. So when we are talking about epidemiology, there are you can see my slides moving, right? Yes sir. Okay. So after this course, you will be what you will be learning. You will be learning how to define epidemiology, the basic terminology and concepts of epidemiology, different data sources, methods, and then public health problem. Okay. So we will come directly to the slide. So what is epidemiology? So there is a problem within the population, and then you have to come up with a response. So classical example which whole humanity and the world has seen 2 years back was of COVID. So there was a problem, and we were not knowing the response, how to do, what to do, how to deal with that. So in epidemiology, there are four basic steps which we should look into. First is surveillance of any outbreak of disease. So to basically know what the problem is, and then during the surveillance, we will be focusing more on risk factor identification. So we will look into if there is a disease, if there is a problem, what are those aggravating factors or those factors which are leading to that outbreak of that disease, and then how to contain that outbreak, how to stop if it is an infectious disease, how to stop the transmission of that disease, how to break that chain of that disease. So we have to come up with certain hypothesis, and based upon which we will design our intervention. Intervention can be in terms of a medicine, it can be in terms of behavior change, like in corona it was sanitizing your hands and using mask. So because whatever disease we are dealing with, whatever outbreak we are dealing with, we don't know much about that. So it will be a hit and trial method. So we will design intervention and we will evaluate those intervention. And then based upon the learning, which implementation work, we will be implementing that to a larger population. So basically this is all about public health approach of epidemiology. So what public health is all about? It is all about surveillance, prevention, and then that prevention, as I said, yes, is there any question? No sir, continue. Okay, so it will be more the public health aspect of epidemiology start with the surveillance, and then
prevention technique, and those prevention techniques should be effective. So it contains your laboratory and then informatics also. If in the newer generation, newer aspect, if you will see, so there is more involvement of artificial intelligence also. So these five components envisage the public health gamut of epidemiology. Now, what is epidemiology? So if you will look into this, is which book you people refer usually for your epidemiology? सर हम लोगों का तो पार्क है. अच्छा, ठीक है. पार्क इज द बेस्ट बुक, बट देयर आर सर्टेन अदर बुक्स. एक बोनीटा करके एक ऑथर है, दिस इज अ WHO पब्लिकेशन, और एक CDC का भी बुक है, विच यू कैन डेफिनेटली. पार्क इज फॉर गेटिंग गुड मार्क्स, but if you want broader knowledge and broader understanding, you can refer those books also. So even park or whichever book I am talking about, they all give the same definition. So study of distribution and determinants of health related states among specified population. तो इसमें तीन चार कंपोनेंट है. एक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजीज और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. दूसरा है डिटर्मिनेंट्स. So what are those determinants? It can be race specific, it can be age specific, it can be gender specific. Okay. So and then third thing is that it should be in the specified population, and the application of that study should be to control the public health problem. So this is the classical example definition which you will read through various books. Now what is the purpose of epidemiology in public health practice? तो पहला है हमारा कि हम एजेंट फाइंड करेंगे, डिस्कवर करेंगे कि किस एजेंट के कारण डिजीज हो रही है. वो एजेंट किस होस्ट में जाएगा. जैसे इट कैन बी, होस्ट कैन बी एन एनिमल ऑल्सो, कैन ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, एंड देन सर्टेन टाइम्स होस्ट ऐसा होता है जहाँ पे आप जो है वो जाता है, उनको इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन वो जैसे ह्यूमन एनिमल में है उनको कोई डिजीज नहीं दिया, जैसे ह्यूमन में है डिजीज स्टार्ट हो गया. तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है हेल्थ कंडीशन को, एंड देन डिटरमिन द रिलेटिव importance of causes of illness, disability and health. वो थर्ड है आइडेंटिफाई दो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो ग्रेटर रिस्क पे होंगे. जैसे मैंने कहा, certain diseases are more common in Asians, certain diseases are more common in Hispanians, certain diseases are more common in people who are from Europe. So that wise certain diseases are very common in females, not so common in male. So we need to find out कौन सा पॉपुलेशन जो है वो ग्रेटर रिस्क पे है, एंड देन फोर्थ विल बी टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दोज हेल्थ प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज इन इम्प्रूविंग द पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम. सो क्या स्टेजेस होंगे हमारे एपिडेमियोलॉजी के? पहला होगा डेटा कलेक्शन, दूसरा होगा डेटा कलेक्शन, जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसको असेस करना और उस असेसमेंट पे एक हाइपोथेसिस बनाना, और फोर्थ जो है हमारा इंटरवेंशन, एक्शन लेना इन फॉर्म ऑफ इंटरवेंशन. तो जो हमने पीछे पहली स्लाइड में देखा था, पहला स्टेप हो गया डेटा कलेक्शन यानी सर्विलेंस. तो कहाँ हो रहा है, किस आदमी को हो रहा है, किस समय हो रहा है, ये सारा डिटेल हम निकालेंगे. दूसरा है जो भी हम डेटा कलेक्ट किए हैं उस डेटा को असेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ टू इंटरफेयर कि ये डिजीज किस में ज्यादा हो रहा है, किस समय ज्यादा हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में हो रहा है. और थर्ड होगा कि बेस्ड अपॉन द डेटा एनालिसिस वी विल बी मेकिंग हाइपोथेसिस. आप लोगों ने स्टैट्स का क्लास चालू किया है या अभी स्टैट्स आपकी क्लास से स्टार्ट नहीं हुई है? सर कौन सा क्लास? स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स. सर बायोस्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर में हो गया सर. अच्छा, तो उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपने पढ़ा होगा. यस यस यस. हाँ, so basically this is about that hypothesis testing, and then based upon that hypothesis testing we will see, we will come up with a set of intervention, and we will see which intervention is working and which is not working. So as I said, there are very three components of epidemiology which matters a lot. First one is disease frequency. So it can be in terms of mortality rate, morbidity rate, or it can be in terms of ratio. And distribution of disease, a distribution of disease in terms of time, किस जगह पे हो रहा है, प्लेस, एंड किन लोगों को ज्यादा हो रहा है. और थर्ड जो है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज,
इसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स हैं और रिस्क फैक्टर्स हैं। जैसे देयर इज अ हाइपोथेसिस कि सिगरेट पीने से हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। Now there is a hypothesis that if you are having diabetes in your family, then there are high chances of getting you diabetes. So these are the determinants जो actually determine करता है कि आपको disease होगा या नहीं होगा या कब होगा। So these are the determinants. रिस्क फैक्टर्स Pardon? नहीं सर, रिस्क फैक्टर्स। हाँ, risk factors. So similarly, there are what is the aim of this epidemiology? Why we are studying? So to describe that disease distribution and magnitude of disease or health problem within a specified population, to know the risk factors, जिसको मेडिकल टर्म में etiological factors भी कहते हैं, वो जानने में हमें मदद करेगा और हमें एक डेटा सेट प्रोवाइड करता है जो कि जिसके हिसाब से हम प्लानिंग कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और फिर इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रिवेंशन कंट्रोल है और ट्रीटमेंट है वो इफेक्टिव है या कि नहीं है। सो ये इसको अल्टीमेटली दो हमारा एम हो गया। एक हो गया तो हेल्थ प्रॉब्लम को खत्म कर देना है या कम कर देना है। दूसरा हमारा है कि हेल्थ और वेलबींग को सोसाइटी में प्रमोट करना है। This is most repetitive question which is being asked in the university exam. Uses of epidemiology. So what are the uses of epidemiology? To study historically the rise and fall of disease in the population. तो हमें ये समझने में मदद करेगा कि भाई ये जो इसका कोई ड्यूरेनल वेरिएशन है, यानी डिजीज दिन में ज्यादा होता है, रात में होता है, या गर्मी में ज्यादा होती है, बरसात में कम होती है। तो ये एक हमें डिजीज पैटर्न को हमें समझने में मदद करेगा कि कब ये बढ़ता है, कब ये घटता है। उसके बाद दूसरा है, इससे हम कम्युनिटी डायग्नोसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आपको रिस्क फैक्टर्स पता चलेंगे, है ना, कि ये मेल में ज्यादा हो रहा है, फीमेल में ज्यादा हो रहा है, चिल्ड्रन में ज्यादा हो, पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ज्यादा हो रहा है, जीडियाट्रिक में हो रहा है या एडोलेसेंट्स में हो रहा है। तो उस तरीके से हमें कम्युनिटी डायग्नोसिस करने में मदद करेगा। तीसरा है, बेस्ड अपॉन द pattern and the risk factors we can plan accordingly to contain that disease condition or health condition, and then further we will evaluate. So evaluation of individual risk and chances, syndrome identification, completing natural history of the disease, and then searching for causes and risk factors. तो ये 7 हमारे जो हैं, ये हमारे बहुत important aspects हैं एपिडेमियोलॉजी के, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो दीज आर द 7 फैक्टर्स। अब हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस के फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। जो एपिडेमियोलॉजी है पब्लिक हेल्थ एस्पेक्ट में, ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको मदद मतलब एपिडेमियोलॉजी के लिए फिट इन नहीं बैठता है? एक है कि आइडेंटिफाई पॉपुलेशन हु आर एट रिस्क एट सर्टेन डिजीज। ये तो हमने इसकी चर्चा की, ये हमें मदद करता है। किसी भी इंटरवेंशन को असेस करने में मदद करता है, हमने ये भी पढ़ा। और ये डिजीज के इम्पोर्टेंस को भी और उसके कॉजेस को समझने में हमें मदद करता है। सी जो ऑप्शन है हमारा, कि ये हमें ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का क्लिनिकल सेटिंग में उसकी मदद नहीं करता है, बिकॉज when we are talking about epidemiology, it is about larger population, it does not talk about any clinical setting. तो हमारा C, yes, it talks about a particular disease in a particular set of population. It never talks about disease in a clinical condition and then more of a curative aspect. ये public health aspect जो है वो larger scale पे होता है। तो हमारा C ऑप्शन जो है वो गलत है। सेकेंड क्वेश्चन है, epidemiologist can use a model for studying infectious disease and its spread that involves the microbe that causes the disease, the organism that harbors the disease and the external factors that causes or allow disease transmission. इसको क्या कहते हैं? host vector transmission host environment, host agent and environment, या organism transmission and environment. यहाँ पे आप सबको आंसर दिख रहा होगा। दिस इज माय फर्स्ट सेशन, तो आई हैव हाईलाइटेड दोस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल
Phenomenological. trial, agent, host, and environment. Yes. So now there are certain terms which we should be acquainted with. Now there is something called epidemic, endemic and pandemic. तो epidemic किसको कहते हैं? जब कोई भी डिजीज एक पॉपुलेशन में हो रहा है और उसका जो रेट है वो जैसे फीवर हो रहा है, तो फीवर तो यूजुअली हर पॉपुलेशन में होता है, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन इफ देयर इज अ स्पाइक इन दोस फीवर केसेस और डायरिया केसेस फॉर टेक एग्जांपल, देन दैट कैन बी एपिडेमिक आउटब्रेक, है ना? तो अगर सडन इंक्रीज हमें दिखे किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी टाइम में, जो नॉर्मली जो रेट रहता है उससे ज्यादा होता है, तो उस डिजीज को हम एपिडेमिक कहेंगे या आउटब्रेक कहेंगे। इंडेमिक किसको कहेंगे? जब वो डिजीज जो है प्रेजेंट होगी एक बड़े पॉपुलेशन में एट ऑल टाइम, तो उसको इंडेमिक कर देंगे। और पैंडेमिक किसको कहते हैं? तो पैंडेमिक जब वो एक क्रॉस बाउंड्री सारे रीजन्स को क्रॉस करके वो पैंडेमिक, जैसे पैंडेमिक का एक एग्जांपल है HIV, दैट इज बीइंग स्प्रेड थ्रू एवरीवेयर। तो और COVID. रेट, हाँ, COVID is also a pandemic which we are living through. We don't know whether it has gone or it will come back again. So there are again things which is being discussed that it is again coming. So definitely COVID is an example of pandemic. So यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे मलेरिया केसेस अफ्रीका में हमेशा रहते हैं और किसी सीजन में बढ़ जाते हैं, तो वो एंडेमिक हो गया। एपिडेमिक, इबोला वायरस इज नॉट वेरी मच कॉमन। सो अगर ये एक्सपेक्ट जो है इबोला वायरस अफ्रीका में ज्यादा देखा जाता है और उसके नॉर्मली पेशेंट्स दिखते रहते हैं, तो अगर वो नंबर बढ़ जाएगा तो वो जो है हमारा केस हो जाएगा एपिडेमिक का। और पैंडेमिक का जैसे मैंने कहा कि ये ग्लोबली दिख रहा है, तो HIV एड्स जो है वो एग्जाम्पल है पैंडेमिक का। सर यहाँ पे हाँ जी, क्वेश्चन है, जी पूछिए। एपिडेमिक में जब सर सडन कोई विलेज में हम लोग जाते हैं तो उस विलेज में पार ड्यूरिंग मलेरिया सीजन मतलब 8 to 10 मलेरिया केसेस कॉमन, हाँ, बट सडन व्हिच नंबर, मतलब कितना नंबर होगा, डबल होगा और माने एक्सपेक्टेशन से बाहर होगा, तब तो हम लोग एपिडेमिक बोलेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, अगर किसी भी एरिया में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप मान लो इफ यू आर यस टॉकिंग अबाउट अ विलेज, तो ऑन एन यस। एवरेज उस गिवन सीजन में 8 to 10 केसेस है, ठीक है? तो हाँ हाँ। +-2 तो ठीक है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ विलेज। अब मान लो यस जैसे 8 से 10 केस कह रहे हैं, तो 12 केस भी है तो ओके है। अब आपको 15 केस मिल रहा है, तो दिस इज समथिंग अलार्मिंग, राइट? 8 और 10 बात कर रहे थे, अब 8 का ऑलमोस्ट डबल होता है 15, ठीक है? तो यस। केसेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वो केसेस आपको दिख रहे हैं कि वो आपके क्लिनिक में रेगुलरली हर दिन केसेस मिल रहा है, ठीक है? तो देन यस यस। दिस इज नॉट अ नॉर्मल पैटर्न। ओके, आप ओके। आपको पहले आपके ओपीडी में अगर बैठ रहे थे और आपको पर डे 1 केस मिल रहा है, 2 केस मिल रहा है, दैट्स ओके। अब ऑल ऑफ ए सडन आपको 3-4 केसेस मिल रहे हैं एक दो की जगह, तो दिस इज समथिंग लाइक हम्म। डबल हो गया केसेस। ओके, तो दिस इज एपिडेमिक। ओके सो ओके। वी शुड नॉट बाउंड इट टू अ नंबर। ओके, नाउ we will be talking about rate. Okay, so as I said, rate can multiple rates we come across: mortality rate, morbidity rate, fertility rate। ये तो रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें बहुत जरूरी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जानना। तो अगर मान लो हम डायरिया के या फीवर के रेट्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ केसेस, जो भी केसेस हमारे पास आ रहे हैं और जिस भी पॉपुलेशन से आ रहे हैं, अगर वो एक गांव है तो उस गांव का पॉपुलेशन इंटू 100, तो ये दिस विल गिव अस रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की फीवर के रेट्स क्या हैं आज इस गांव के या किसी जिला का या किसी ब्लॉक का। तो दिस इज द फॉर्मूला बेस्ड ऑन विच वी कैलकुलेट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक निमोनिया का केसेस हुआ था अमेरिका में, का ये एग्जांपल है। तो 17 जुलाई का ये डेटा है, जुलाई 21 से 24 में अमेरिका में एक कन्वेंशन हुआ था और फिलाडेल्फिया में ये देखने को मिला था। 26 से 21 के बीच में 18 डेथ्स हुए। जो लोग 21 से 24 में उस कन्वेंशन में आए थे, उनमें से 18 लोग मर गए।
अगस्त 2 की सुबह में हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो थे वो उस हॉस्पिटल के इन फिलाडेल्फिया वो सीडीसी को कॉल किया और रिपोर्ट किया केसेस को कि जो लोग मरे हैं उनमें सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस, जो लोग अटेंड किए थे उस कन्वेंशन को, उनमें ये रेस्पिरेटरी डिजीज देखने को मिला। और अगस्त 2 को जो है और 17 केसेस जो है ये रिपोर्ट हुए। तो ये मतलब ये इफ यू विल गो एंड रीड दिस स्टडी, दिस इज अ क्लासिकल स्टडी ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये एक होटल में ये कन्वेंशन हुआ था और उस होटल के लोग जो थे, जो स्टाफ थे, वो इस डिजीज के लिए उनके शरीर में एंटीबॉडी था, वो इम्यून थे, लेकिन जो लोग गए उनको ये डिजीज हुई। Now, if this data was analyzed based upon, this was the whole case. Now they have analyzed the data. तो डेटा एनालिसिस करने के बाद इनको ये पता चला, ये आप जैसे ही लेगुनर्स डिजीज डालोगे ना, आपको ये स्टडी दिख जाएगा आपको गूगल पे। तो एज ग्रुप में इसको कैटेगराइज किया, लेस देन 39, फिर 40 से 49, 50 से 59, 60 से। तो इसमें दिख रहा है कि सिक पीपल जो है वो ज्यादा 50 से 59 वाले एज ग्रुप में है। और जो है आपको टोटल केसेस जो है 320 था उसमें नंबर में, और ये इसको परसेंटेज वाइज इन्होंने डाटा कैटेगराइज किया, ईयर वाइज कितने टोटल केसेस मिले, कितने लोग थे टोटल, और उनमें से कितने सिक हुए। तो इसमें से एक जो है फैक्टर ये दिख रहा है कि 50 से 59 वाले एज ग्रुप में और 60 से 69 वाले एज ग्रुप में लोग ज्यादा बीमार हुए। तो ये समझ में आ रहा है कि शायद जीडियाट्रिक एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज्यादा इस लेगिनस डिजीज से जो रेस्पिरेटरी इलनेस था उसमें ज्यादा अफेक्टेड हुए। अब ये होटल ए है जहां लोग रहने गए थे, और ये 21 से 24 का ही डेटा है, और ये आपको फिर से वही वाला डेटा दिख रहा है, और ये सारे वो लोग थे जो उस होटल ए में रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि जब इस डेटा को इन्होंने डेटा कलेक्ट किया और डेटा लेके जब फाइनली आपको मैं बता रहा हूँ, जो समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ, इसमें से दो रिस्क फैक्टर निकल के आए। पहला रिस्क फैक्टर ये निकल के आया है कि जो जीडियाट्रिक एज ग्रुप है वो इस डिजीज से ज्यादा अफेक्टेड हुए। दूसरा ये दिख रहा है कि जो होटल ए में रहे, उस कन्वेंशन में लोग कोई भी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो दे स्टे इन मल्टीपल होटल, बट जो लोग होटल ए में रहे उस लोगों में ये डिजीज ज्यादा प्रोमिनेंटली दिख रहा था और वो लोग ज्यादा अफेक्टेड हुए। अफेक्टेड हो रहे हैं। जी जी जी। सो नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द स्टडीज? एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज तो दो तरीके के होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल होता है, एक ऑब्जर्वेशनल होता है। और ऑब्जर्वेशनल में भी दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है और एनालिटिक होता है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, हम भी डोंट इंटरफेयर एनीथिंग और इंटरवीन एनीथिंग, और उसको अपने आप होने देते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी में क्या करते हैं? यहाँ पे हम इंटरफेयर करते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं कि कोशिश करें कि डिजीज डिटर्मिनेंट को चेंज कर दे। जैसे मान लो अगर हम एक कोहर्ट स्टडी कर रहे हैं, एक उम्र के लोगों को हम फॉलो अप कर रहे हैं, और उनके अंदर हम अगर हार्ट कंडीशंस को, कार्डियक डिजीज को देखना चाह रहे हैं, तो उसमें हम ये उनका एक्सपोजर और डिटर्मिनेंट्स क्या होगा? सिगरेट। तो एक ग्रुप को हम सिगरेट पीने दे रहे हैं, दूसरे को हम सिगरेट पीने से मना कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, क्योंकि हम एक ग्रुप को मना कर दे रहे हैं सिगरेट पीने से, एक्सपोजर कम कर दे रहे हैं, और एक का एक्सपोजर रहने दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इंटरवीन करते हैं, जबकि ऑब्जर्वेशनल स्टडी में हम ऐसा नहीं करते हैं। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल स्टडी। अब जैसा कि हमने पढ़ा था, ऑब्जर्वेशनल स्टडी दो टाइप के होते हैं, कौन से? डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिक। तो तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन कब अफेक्टेड हुआ, पॉपुलेशन कहाँ अफेक्टेड हुआ, और कौन अफेक्टेड हुआ। तो ये सारा हम डिस्क्रिप्शन में निकालते हैं, कौन सा एज ग्रुप था, कौन सा जगह था। जैसे हम लेगिनस डिजीज में देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कब इफेक्ट हुआ, तो एक टाइम फ्रेम हमको दिख रहा है। तो पॉपुलेशन कहाँ अफेक्ट हुआ, तो हमें दिख रहा है होटल ए में दिख रहा है। कौन अफेक्ट हुआ, तो हमें दिख रहा है जीरियाट्रिक केसेस ज्यादा अफेक्ट हुआ।
अब एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है, हम ये समझने की करते हैं, जो हमें डिस्क्रिप्शन मिला इसके बेसिस पे हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन कैसे अफेक्ट हुआ और पॉपुलेशन क्यों अफेक्ट हुआ। तो टाइम, प्लेस, पर्सन जो है ये वाला आपको डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है, और एनालिटिक में आ जाता है कि ड्यूरिंग दैट डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस व्हाट वी आर कंसर्न विथ। तो हम ये देखते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। विच स्लाइड यू आर सीइंग? स्लाइड नंबर बता पाएंगे, कौन सा स्लाइड देख रहे हैं आप? 31 सर। ओके, गुड गुड, मुझे लगा मैं शायद स्लाइड पीछे ही हूँ। ओके, तो अब इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये ना ट्रैक्टर रिलेटेड डेथ्स की बात कर रहा है। 82 में एक फार्म ट्रैक्टर से डेथ्स ज्यादा हो रहे थे। अब इसके बेसिस पे डेटा को एनालाइज किया गया, और आप देख पा रहे होंगे डेटा में हमें ये दिख रहा है कि शाम में डेथ्स ज्यादा हो रहे हैं। 4 से 5 के बीच में अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ डेथ जो है वो पीक कर रहा है, और सुबह में 11 से 12 के बीच में। सो ये 24 आवर पैटर्न है। उसमें आप देख रहे हैं, आप सबको दिख रहा है कि केसेस 17 दिख रहे हैं 11 से 12 के बीच में, और 4 से 5 के बीच में 25 दिख रहा है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, यस अब सर। इसी को देख रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के लोग हैं जिनमें डेथ्स ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से आप अगर डेथ्स देखिएगा तो एज ग्रुप में आपको दिख रहा है कि मोर और लेस बहुत सारे एज ग्रुप के लोग मरे हैं, लेकिन एज ग्रुप जिनका 60 से 69 के बीच में है, दे आर द वन हु आर अमंग दोज देयर इज मोर मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ ट्रैक्टर। अब ये इसको मैप किया गया, तो इस जो जो भी एरिया में डेथ्स को हम स्टडी कर रहे हैं, उस फॉर योर एग्जांपल दिस इज मैप फ्रॉम वन ऑफ द काउंटीज ऑफ अमेरिका, जॉर्जिया का है। तो अब जब इसको प्लॉट किया गया मैप पे कि डेथ्स कहाँ पे ज्यादा हो रही हैं, तो आपको दिख रहा है कि एक एरिया में जो डेथ्स है वो ज्यादा आपको डेंसली दिख रहा होगा। यू कैन सी दैट सर्कल? यस। ओके, नाउ so when this is something ये कौन सा स्टडी का एग्जांपल हो गया, ये जो हम देख रहे हैं ये ट्रैक? एनालिटिकल स्टडी। हाँ, पहले हमने ऑब्जर्व किया कि डेथ्स कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उसके Yes, sir. बाद हमने इसको एनालाइज किया। सो दिस विल बी मोर ऑफ ऑब्जर्वेशनल और एक्सपेरिमेंटल। ऑब्जर्वेशन। हाँ, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। नाउ तो बेसिकली स्टडी डिजाइन की हम बात करते हैं तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होता है, एक कोहॉर्ट स्टडी होता है, एक केस कंट्रोल स्टडी होता है। आप लोगों में से कोई लोग बता पाएंगे ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सर एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल और प्रीवेलेंस कहते हैं हम लोग। जब केस जब बढ़ जाएगा, मतलब सर इकोलॉजिकल आपने नहीं बोला ना? नहीं, इकोलॉजिकल फैलेसी की बात नहीं की है मैंने। क्रॉस सेक्शनल केस अब एक, कंट्रोल एंड कोर्ट स्टडी। हाँ, कोहॉर्ट स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी उस स्टडी को कहते हैं जिसमें हम किसी भी गिवन टाइम फ्रेम में सब्जेक्ट से एक बार मिले, ठीक है, और हम डेटा कलेक्ट करके चले आए, तो दिस इज क्रॉस सेक्शनल, है ना। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड बिकॉज दे आर मेंबर्स ऑफ अ सर्टेन पॉपुलेशन सबसेट एट अ सर्टेन टाइम। तो ये बहुत टाइम Yes, sir. स्पेसिफिक है, हमने जो भी डेटा कलेक्ट किया वो एक समय पे ही डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज क्रॉस सेक्शनल। दूसरा जो है वो कोहॉर्ट है। कोहॉर्ट कैन बी अ बर्थ कोहॉर्ट, है ना, जो जितने भी बच्चे 2022 में पैदा हुए उनके बीच में हम एक स्टडी करना चाहते हैं, तो दैट कैन बी अ कोहॉर्ट स्टडी, ठीक है, तो ये बर्थ कोहॉर्ट हो गया। या हम ऐसा स्टडी करना चाहते हैं जिसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि 2022 में जितने भी एमपीएच कोर्स के लिए लोग जो इनरोल हुए थे वो 5 साल बाद उनमें हम
असेस करना चाहते हैं कि उनके स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पैटर्न क्या हो गया, है ना। So just because of doing MPH, was there any behavior change in them? तो it is a cohort study. Cohort मतलब एक group of people को हम study करते हैं for a longer period of time. तो subjects are categorized based on basis of their exposure. तो जैसे मैं MPH cohort की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, एक्सपोजर क्या है, MPH स्टडी। मैं ये स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि MPH पढ़ने से लोगों में, है ना, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पैटर्न क्या होता है। तो एक्सपोजर MPH हो गया। तो रिस्क फैक्टर क्या हो गया कि भाई पढ़ने से वो सिगरेट और अल्कोहल कम पीते हैं या नहीं पीते हैं, तो रिस्क फैक्टर अल्कोहल और स्मोक हो गया। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एक्चुअली फ्यूचर में जाना पड़ेगा, कोड में फ्यूचर में नहीं, फ्यूचर जाएगा। कोहॉर्ट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव एज वेल एज प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव में देयर विल बी रिकॉल बायस, सो इट विल बी अ प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव विल ऑलवेज गिव यू अ गुड रिजल्ट और अनबायस्ड रिजल्ट। प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव समझ रहे हैं? यस सर। प्रोस्पेक्टिव मतलब इन कमिंग 2-3 ईयर्स, और रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे 2-3 साल में क्या हुआ, पीछे 2-3 साल। हाँ। yes. तो लोग रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी भी करते हैं कोहॉर्ट, और प्रोस्पेक्टिव भी करते हैं। बट व्हेन यू विल लुक इनटू बायसेस ऑफ द स्टडी, ठीक है, तो एक बायस होता है रिकॉल बायस। हम अगर आपसे कोई पूछे कि पिछले साल 1 जनवरी को आपने क्या खाया था डिनर में, कैन यू रिमेम्बर? नो सर। और हम इसको कहीं डॉक्यूमेंट भी करके नहीं रखते। तो रिकॉल बायस होता है, तो हमें ये बायसेस को ध्यान में रखने होते हैं। जब प्रोस्पेक्टिव स्टडी में हमें जब कर रहे हैं और हमें जब भी लगे कि वी नीड टू कैप्चर दिस डेटा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमें वो डेटा कैप्चर करने के लिए उस टाइम फ्रेम में हम जा सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। तो इसमें रिकॉल करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है, बट डेफिनेटली पीपल आर डूइंग रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज ऑल्सो, एंड देयर आर वेज जहां पे हम वो जो रिकॉल बायस है उसको कैसे फैक्टर इन कर सकते हैं अपना स्टडी में, वो भी एक तरीका है। नाउ थर्ड स्टडी इज केस कंट्रोल स्टडी। अब हम केस कंट्रोल स्टडी मोस्टली आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दिखता है व्हेन दे आर इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू डिजीज। करते क्या है, जैसे मान लो एक डिजीज है कैंसर, तो हम एक हाइपोथेसिस के साथ आते हैं कि जो नया ड्रग, न्यू ड्रग ए है, वो कैंसर के रेट्स को खत्म कर देगा या उनमें मोर्टिलिटी कम कर देगा। तो 2 ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप वो होता है जो हमारे कंट्रोल होता है और एक केस होता है। तो एक में हम या तो उनको ऑनगोइंग जो भी दवा दे रहे हैं वो देते हैं, और दूसरे में हम न्यू ड्रग देते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि जिनमें हम दवा दे रहे थे, न्यू ड्रग ए दे रहे थे, उनमें सर्वाइवल रेट कैसा है, और जिनको हम या तो प्लेसेबो दे रहे थे या एग्जिस्टिंग कोई भी पुरानी दवा दे रहे थे, उनमें सर्वाइवल रेट कैसा है। तो ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ही देखा जाता है, बट इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, बट 90% ऑफ द केसेस ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको दिखता है। तो ये 3 तरीके के स्टडी हो गए जो हम यूजुअली देखते हैं। पहला हमने कहा क्रॉस सेक्शनल, जिसमें हम एक टाइम पे जाते हैं, पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करके आते हैं, एंड देन वी सी हाउ इट वर्क्स। उसके बाद दूसरा जो स्टडी हमने देखा वो देखा कोहर्ट कि हम एक एज ग्रुप, दैट कैन बी बर्थ कोहर्ट, दैट कैन बी स्कूल, मतलब या आपके एजुकेशनल कोहर्ट, और इट कैन बी अ कोहर्ट फ्रॉम अ एरिया। तो उस कोहर्ट में हम किसी भी डिजीज पैटर्न को, चीजों को समझने के लिए लेते हैं। और तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने केस कंट्रोल। तो एक उसमें केस रखते हैं जिसमें हम एक के एक्सपोजर को मैनिपुलेट करते हैं, और दूसरा जो है हमारा कंट्रोल होता है। कंट्रोल। तो हाँ, हम उसके तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सो अगर आप बुक में पढ़िएगा तो यू विल सी मेनी टाइप्स ऑफ स्टडीज, है ना। और पार्क में आप पढ़िएगा तो, हाँ, पार्क में पढ़िएगा तो आपको ऑब्जर्वेशनल और एनालिटिकल को थोड़ा सा इन्होंने और बेहतर तरीके से बताया है। केस कंट्रोल में सिलेक्शन कैसे होता है, केस का कंट्रोल का केसेस कैसे सेलेक्ट करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनलिस्ट करते हैं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इनलिस्ट करते हैं, है ना।
सोर्स क्या होगा Yes, sir. केस का, डेफिनेशन। जब भी आप केस कंट्रोल करते हैं तो आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ता है केस कौन होगा, ठीक है। तो देयर इज अ प्रोटोकॉल विच नीड्स टू बी फॉलोड। केस का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कंट्रोल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमें लिस्ट करनी होती है। एंड दिस इज वेरी, उसके बाद मैच करते हैं उसको एज उसको एज के हिसाब से मैच करते हैं, और है ना, सेक्स के हिसाब से मैच करते हैं। तो मैचिंग बहुत जरूरी है, और एक्सपोजर को भी हम मेजर करते हैं। तो ये आप पार्क में ना ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में लिखी हुई है, और दिस इज सेल्फ एक्सप्लानेटरी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बायसेस आते हैं, बहुत सारे बायसेस आते हैं। तो बायसेस के बारे में भी इन्होंने इसमें चर्चा कर रखी है। और ये चीजें जो है आपको स्टैट्स में भी पढ़ाई गई होंगी, आई एज्यूम। फिर इसमें Yes, sir. आपको आपको ना एक Sir, एक हाँ, actually, sir, बोलिए। हेलो। actually, how to select, मतलब कौन सा कम्युनिटी अफेक्टेड हो रहा है, कौन सा कम्युनिटी में ज्यादा ये केस बढ़ रहा है, तो मतलब कैसे हम लोग ये डायग्नोसिस करें, ये पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है, ये कॉस्ट नहीं नहीं, सेक्शनल स्टडी करना ये पड़ेगा, ये पास्ट में सब जाना, थोड़ा डिटेल्स हाँ, में होगा ताकि। पास्ट में जाना है, फ्यूचर में जाना है, ये अभी ये इसमें कंफ्यूज मत हुई। जैसे मान लीजिए आपको न्यूज से पता चला है ना, या आपके ओपीडी से पता चला कि केसेस के नंबर किसी किसी भी डिजीज के केसेस के, जैसे यूजुअली जो है रेनी सीजन में डायरिया के केसेस बढ़ते हैं, ठीक है, दैट्स द जनरल हाइपोथेसिस। यस, अब यस। अगर इफ यू आर सिटिंग इन हम्म। ओपीडी, ओके, और इफ यू आर वर्किंग फॉर अ हॉस्पिटल फॉर एग्जांपल, और इफ यू आर वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम, किसी जैसे एनएचएम में आप लोगों में से बहुत हैं, तो आईडीएसपी एक प्रोग्राम चलता है एनएचएम में, है ना, इंटीग्रेटेड डिजीज यस सर, सर्विलेंस यस प्रोग्राम। सर। हाँ, तो वहां रिपोर्टिंग हुआ हाँ। किसी जिले से रिपोर्टिंग हुआ कि दिस इज विंटर इन इंडिया, एंड ऑल ऑफ अ सडन देयर इज अ स्पाइक इन केसेस ऑफ डायरिया। वो भी किसी स्पेसिफिक ब्लॉक से आपको रिपोर्टिंग आ यस। रही है कि ये डायरिया डायरिया के केसेस हो रहे हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू स्टार्ट सर्विलेंस। सर्विलेंस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना, किन लोगों में हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब जैसे मेरा एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस ये है, नो, कि कहीं मान लीजिए ये एक हम कोई छोटा सा एरिया ले लेते हैं आसाम का। आसाम में न्यू ईयर और क्रिसमस पार्टी हुई थी, और उस एरिया में जो वाटर सप्लाई था वो कॉन्टामिनेटेड था। तो बिकॉज ऑफ विच जिस जिस एरिया में वो पानी गया, ओके। और वहां पे न्यू ईयर पार्टी या क्रिसमस पार्टी में लोगों ने जो पार्टी की, खाना खाया, उनमें डायरिया के केसेस बढ़ गए, ठीक है। तो ये हमारा, जब हम अपने डेटा यस, को यस। जब एनालाइज करेंगे, है ना, एनालिटिकल स्टडी से, किन किन एज ग्रुप में हुआ, इन्होंने इनका एक्सपोजर क्या था, कहाँ खाना खाया था, क्या किए थे। तो ये सारा आप जब एनालाइज करोगे तो ये प्रोस्पेक्टिव होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव कभी नहीं हो सकता। तो ये आपको आप मतलब ये जो केसेस हो चुके और केसेस हो रहे हैं, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव भी होता है। आपके पास ऑल ऑफ ए सडन डायरिया के केसेस बढ़ के आने लगे, 3-4 तारीख को आपको स्टेट में पता चला कि भाई धुबरी एक जिला है असम का, वहां पे केसेस बढ़ रहे थे। तो धुबरी में टीम को भेजे, और जब भी ये टीम जाएगा तो आपके पास केस रिपोर्ट हो चुके हैं 2-3 को, और ये केस पीछे से आ रहा है, 25 से 2 के बीच में ये इश्यूज हुए। तो अब तो 25 से 2 के बीच में धुबरी जिले का जितने भी हॉस्पिटल के डेटा है, आप उस डेटा को खंगालोगे। अब उस डेटा, ये जब भी स्टडी होगा तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। तो आपको ये डेटा ओके। एनालाइज करने के बाद पता चलेगा कि ये, जैसे मेरा हाइपोथेसिस है कि ये न्यू ईयर और क्रिसमस की पार्टी पे हुआ। तो जो जो लोग चर्च गए, प्रोबेबली जीरियाट्रिक केसेस चर्च में रात में नहीं जाएंगे, दिन में जाएंगे, है ना। तो किसी एक यस, यस। टाइम पे क्या पार्टी करने से हुआ था, या किसी दूसरे टाइम पे हुआ था, ये सारा हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये जो है डेफिनेटली, जैसे ही कोई आपको ब्रेकडाउन मिला है ना केस का, डिजीज का, तो वो बेस्ड अपॉन दैट यू नीड टू फाइंड आउट वेदर इट इज केसेस ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो नॉर्मली नहीं होते थे। दिस इज समथिंग अलार्मिंग।
और IDSP सेल जो है इसमें आपको बहुत मदद करता है, एंड दे आर द फर्स्ट वन टू रेज द अलार्म कि भाई ये जो है नॉर्मल जो डिजीज पैटर्न है उससे ज्यादा होता है, हो रहा है केसेस, है ना। किसी स्टेट्स में, जैसे इफ यू विल गो टू स्टेट्स लाइक केरला, if you will go to states like Karnataka and Tamil Nadu, their IDSP cells are very good, तो वो तुरंत अलार्म रेज करते हैं। तो ये आपको प्रोग्राम में रह के ये सारी चीजें समझ में आएगी जब आप देखोगे, या इफ यू आर बेस्ड इन अ हॉस्पिटल में आप, आई डोंट नो हाउ मेनी हॉस्पिटल्स दे एनालाइज देयर डेटा, उनके डेटा सेट को आप देखोगे रेगुलर बेसिस पे, देन यू विल कम टू नो कि भाई अगर ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है तो क्या वहाँ पे फीवर के केसेस, सीजनल वेरिएशन, मैं जो सीजनल वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, ड्यूरनल वेरिएशन की बात कर रहा हूँ, तो जो हॉस्पिटल का डेटा सेट है, दैट डेटा सेट इटसेल्फ विल गिव यू मल्टीपल हिंट्स कि आपके एरिया में जो हॉस्पिटल में जो केसेस आ रहे हैं उसमें सडन स्पाइक है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, इस तरह की चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अब एक एपिडेमियोलॉजी से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कैन भी होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी। दिस इज वेरी इन अ गुड वे लिस्टेड इन अ टेबुलर फॉर्म इन योर पार्क, आप उसको रेफर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ये आपसे बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ये सवाल। ओके, आउटब्रेक हमारा इन्वेस्टिगेशन हमारा अगले चैप्टर में होगा। आपके और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दिस इज डन फॉर द डे फ्रॉम माय साइड। जैसे चलो अभी हमारे पास समय है तो हम थोड़ा सा केस कंट्रोल स्टडी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। केस कंट्रोल स्टडी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। तो केस एंड कंट्रोल स्टडी जो है वो थोड़ा सा इजी है हमारे लिए काम कर लेना क्या केस कंट्रोल में, और हम इसको कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। कोहॉर्ट स्टडी, चूंकि किसी कोहॉर्ट को किसी लंबे समय तक फॉलो करना पड़ता है, तो कंपेयर टू कोहॉर्ट स्टडी दिस इज रिलेटिवली इजियर टू डू और इनएक्सपेंसिव है, मतलब उतना एक्सपेंसिव नहीं है। और इसमें आप अगर सैंपल साइज कैलकुलेट करोगे तो आपको केस कंट्रोल स्टडी में सैंपल साइज कम जरूरत पड़ता है, कोहॉर्ट स्टडी में सैंपल साइज हमें बड़ा सैंपल की जरूरत पड़ती है। तो इस टाइप के चीजें जो है यहाँ पे आपको इसके एडवांटेजेस हो सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी इसके हैं कि इसमें बायस हो सकता है ना। जैसे मैंने कहा कि पीछे का रिकॉर्ड अगर आप खोजोगे तो इसमें पीछे का रिकॉर्ड नहीं मिल सकता। तो दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ केस कंट्रोल स्टडी। आपके कोई पर्टिकुलर सवाल है तो आप बताएं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट।